ऑलराइट, नेशनल इनकम में अगर हम बात करें, ग्रॉस एंड नेट का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन, दूसरा नाम, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अरे भाई खाली सारे ही बोलेगी क्या? तीसरा नाम, Assumption of fixed capital. चौथा नाम, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, thank you. So you call it as depreciation, you call it as current replacement cost, you call it as consumption of fixed capital, or you call it as capital consumption allowance. It's one and the same thing. नेट छोटा है तो प्लस हो जाएगा, ग्रॉस बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, क्या? डेप्रिसिएशन, बिकॉज ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक एंड नेशनल, व्हाट्स द डिफरेंस? NFIFA. And what's the difference of NFIFA? FIRFA minus FIPTA, called factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. I repeat, factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. डोमेस्टिक छोटा तो NFIFA प्लस हो जाएगा, नेशनल बड़ा तो NFIFA माइनस हो जाएगा न्यूमेरिकल करते वक्त. तो इफ डोमेस्टिक इज गिवन, वी नीड टू ऐड NFIFA to get national income and vice versa to get domestic income. Domestic income का दूसरा नाम क्या होता है? So you call it as domestic income or you call it as domestic factor income. It's one and the same thing. Market price and factor cost का difference क्या होता है? NIT. NIT is indirect tax minus subsidy. NIT is indirect tax minus subsidy. So if market price is given, we'll subtract NIT. If factor cost is given, we will add NIT. All about छोटा बड़ा बड़ा छोटा. Now फॉर्मूलाज मैं एज्यूम कर रहा हूं सबको याद होंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बात करना चाहूंगा, लाइक इनकम मेथड. जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है. पूरे फॉर्मूलाज अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उनके न्यूमेरिकल्स रिवाइज कर रहा हूं. फॉर्मूलाज आप लोगों ने मेरे साथ लिखे हुए हैं. इनकम मेथड करते वक्त प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप कैसे कैसे निकाल सकते हो? CT प्लस UP प्लस डिविडेंड, कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड. और if profit after tax is given, you need to add corporate tax to get profit before tax. You need to add corporate tax to get profit before tax. Now UP के बहुत सारे नाम होते हैं. Yes, Pia Mera. One name is undistributed profit. Another name is retained earnings. Sorry, Pia. Retained earnings. Retained earnings. Third name. Third name, guys. Sir, savings of private corporate sector. Thank you. You call it as saving of private corporate sector or you call it as corporate saving. It's one and the same thing. तो ये नाम इसलिए याद रखने हैं क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन तो आता होता है बट आप नाम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. सो यू कॉल इट एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और यू कॉल इट एज रिटेन्ड अर्निंग और यू कॉल इट एज कॉर्पोरेट सेविंग. और इधर देखो बच्चों, यू कॉल इट एज रिजर्व्स or you call it as reserve, which is another name for undistributed profit, which is undistributed profit.
Similarly, expenditure method. The key points to be kept in mind is जो हम ज्यादातर भूल जाते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादातर डायरेक्टली दिया होता है. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादातर डायरेक्टली दिया होता है, but private final consumption expenditure has two components. What are the two components? One is private final consumption expenditure of household sector, and another is private final consumption expenditure of firms called, बोलो बच्चों, business entity. Is that clear, Divij? Divij, Yes, sir. is that clear? Yes, sir. ये गलती नहीं करनी बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोबारा बोल रहा हूँ, नथिंग एल्स. Okay, now number 2, Divij, gross domestic capital formation. I repeat, आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म याद होगी, gross domestic capital formation. Or you simply call it as gross capital formation, or you simply call it as gross capital formation, or you simply call it as gross investment. It's one and the. Thank you. Now GDCF oblique GCF, GDCF oblique GCF is given. GDCF oblique GCF. और आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है NDCF oblique NCF, तो क्या ऐड करोगे? सारा? Yes, sir. NDFCF दिया है तो क्या ऐड करोगे? So depreciation and change in stock. Thank you. Depreciation plus change in stock. और चेंज इन स्टॉक का इको में क्या फॉर्मूला होता है? Closing minus opening stock. ओके, व्हेन वी से, बड़े ध्यान से सुनना, ये पॉइंट जरूरी है, जल्दी में हम गड़बड़ करते हैं. मैंने सारा से पूछा, अगर क्वेश्चन में वर्ड लिख, देखो क्वेश्चन तो करूंगा बट सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाऊंगा बच्चों, सो आई एम ट्राइंग टू टच द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर क्वेश्चन में इंक्रीज इन स्टॉक लिखा है तो बताओ क्या करूं? इस इक्वेशन में यहाँ पे मुझे चेंज इन स्टॉक ऐड का फॉर्मूला बना, और क्वेश्चन में अगर इंक्रीज इन स्टॉक लिखा आया से 50 करोड़, तो बताओ इस फॉर्मूला में यहाँ पर कैसे लिखूं? प्लस यहाँ पे वैल्यू कितनी लिखूं? So plus 50 because Alright. if increase in stock is 50. ओपनिंग 20 करोड़, क्लोजिंग 70 करोड़, तो आपका इंक्रीज इन स्टॉक कितना हुआ बेटा? 50 करोड़. 50 crores. Yes, इसका sir. मतलब आपका क्लोजिंग बड़ा है और ओपनिंग छोटा है, Yes, sir. इसीलिए हमने उसे ऐड किया. इज दैट क्लियर? Yes, sir. बड़ा सिंपल सा है, इंक्रीज है तो ऐड, डिक्रीज है तो माइनस. क्लियर है एंजल? Angel, is that clear? Yes, sir. Okay. Now, next thing to keep in mind is GDCF चाहिए था मेरे को, और क्वेश्चन में दिया है GDFCF. अब सिर्फ क्या ऐड करोगे? हम पेपर में वर्ड फिक्स को इग्नोर कर जाते हैं आर्यन मलिक, तो GDCF हम उसे एज्यूम कर लेते हैं और चेंज इन स्टॉक ऐड करना भूल जाते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है. तो यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, अगर वर्ड नेट आया तो डेप ऐड करना पड़ेगा, और अगर वर्ड फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आया तो मुझे
चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा, और अगर दोनों आ गए कॉल्ड नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जैसा पिछले में था, तो मुझे डेप्थ और चेंज इन स्टॉक दोनों ऐड करना पड़ेगा। नाउ फटाफट से बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। Value added method. Now when we talk about value added method, दिवेज सेल्स का मतलब, इसका मतलब उसमें एक्सपोर्ट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली मेरा बेटा परचेज का मतलब, टोटल परचेजिंग तो उसमें मुझे इंपोर्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। और अगर वर्ड डोमेस्टिक सेल्स लिखा है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट्स। और आपकी पूरी बुक में क्वेश्चन नहीं है। और अगर वर्ड डोमेस्टिक परचेज लिखा है, अगर वर्ड डोमेस्टिक परचेज लिखा है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स। थैंक यू। दूसरी इंपॉर्टेंट बात फटाफट से, देन आई विल डू फ्यू क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इनकम विद यू। वैल्यू ऑफ इनपुट का दूसरा नाम, बोलो भाई। Intermediate consumption. ऑब्लिक इंटरमीडिएट परचेज, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑब्लिक इंटरमीडिएट परचेज। ऑलराइट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में रॉ मटेरियल आएगा, आएगा। एंजल वोरा कैपिटल गुड्स आएगा, Yeah. सारा चावला पावर कंजम्पशन आएगा, Yes, sir. ओके। वेजेस आएगा सारा, Sir, नहीं. थैंक यू। ओके, उसके बाद अनदर थिंग, किसका, त्रिशा बजाज। वैल्यू हाँ ऑफ जी सर। आउटपुट के मैंने दो फॉर्मूलाज लिखवाए थे। वन फॉर्मूला वाज टोटल हाँ जी। सेल्स प्लस Change चेंज in इन stock. स्टॉक, The और other one was quantity into price. बट विच क्वांटिटी? क्वांटिटी Quantity of प्रोड्यूस्ड, produce. ना कि क्वांटिटी सोल्ड। तो पेपर हाँ के लिए जी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी दिया था अभी। अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है प्राइस 20 और क्वांटिटी सोल्ड 1000, तो आपके पास 25,000 इंटू 1000 करके क्या आया? आपके पास प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड करके क्या आया? टोटल Sale. Total सेल्स। sales. आपको इसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। पिया मेहरा, एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, बताओ क्या ऐड करनी पड़ेगी? Production for self-consumption. थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. All Sir, right. to ask, यस बच्चों, under value of input, will we be including, विल will we include rent for value of input? नो, Okay, sir. Thank you. यस बच्चों। Now my question to Divij, यस सर। अगर पेपर में गलती से, आपकी पूरी बुक में क्वेश्चन नहीं है बट गलती से लिखा आ जाए बेटा क्वांटिटी, जैसे व्हाट इज कैश फ्लो वाज वेरी अननेचुरल क्वेश्चन जो जनरली बहुत टाइम से पूछा नहीं गया, क्वांटिटी प्रोड्यूस लिखा आ गया, तो ये जो 25 इंटू 1000 किया, ये आपके पास क्या आया? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, मेरा सवाल सारा चावला से, क्या आप चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे? Yes, sir. No, sir. इसमें नहीं करेंगे. क्या आप प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड करोगे? No, sir. क्योंकि produced में वो included है. तो बस ये छोटी सी बात याद रखना। एक मिनट दे दो बच्चा बैठे।
हेलो, हाँ जी, हेलो। ओके, नाउ इज दैट पॉइंट क्लियर सारा? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट में अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस दिया है तो मुझे उन सब चीजों को इग्नोर करना है। सो फार सो गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Question says find out the value of sales. Find out the value of sales question mark. Now the moment I read the question, मुझे मालूम है सेल्स वर्ड यूज होता है वैल्यू एडेड मेथड में। कब? जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं जिसका फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मुझे क्वेश्चन नहीं पढ़ना बेटा एग्जाम में। इफ यू नो द फॉर्मूला दिस इज व्हाट यू हैव टू मूव। सेकंड, वैल्यू ऑफ आउटपुट वर्ड यूज होता है जब हमारे को निकालना होता है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ऑल्सो कॉल्ड सिंपली वैल्यू एडेड। द फॉर्मूला फॉर विच इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। तो मुझे ये दो चीजें स्ट्राइक की कि टू कैलकुलेट द सेल्स आई नीड वैल्यू ऑफ आउटपुट, एंड फॉर वैल्यू ऑफ आउटपुट आई रिपीट, फॉर वैल्यू ऑफ आउटपुट I need to use the formula value added, which is value of output minus value of input. Now question says net value added at factor cost. मेरी बात। For here we need net value added at market price, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? net value added at factor cost, which is 2000. त्रिशा बजाज, तो बताओ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस NIT होता है, उसको मैं यहाँ पे प्लस करूं या माइनस? प्लस करोगे। बिकॉज फैक्टर कॉस्ट छोटा तो इसीलिए NIT प्लस। नाउ अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब्सिडी 200, सो कैन आई राइट माइनस 200। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 100, क्लोजिंग स्टॉक 600। I don't know whether I need it or not. Yes, I need it. Change in stock, closing minus opening. Intermediate consumption 3000. Intermediate consumption is another name for value of input. Consumption of fixed capital is another name for, bolo bacha bati, consumption of fixed capital is another name for depreciation. Okay. Now, Divij, Sara, Pia Mehra, I am very much pissed off from you people. पूछो क्यों? तो क्यों? बेटा मैंने फॉर्मूला गलत लिखा था, आपको हिंट भी दिया था बट किसी ने समझा ही नहीं। By value added method, Sara, we never get NVA at MP. We get GVA MP. and to get GVA at MP, मुझे अपनी NVA at FC में नेट छोटा होता है, डेप्थ ऐड करना पड़ेगा। तो हर क्वेश्चन में ब्लफ नहीं होगा, हर क्वेश्चन में ब्लफ हो ये जरूरी नहीं है। दिस इज द थिंग आई वांटेड टू चेक। मुझे पता है आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाते हो, सो आई रिपीट, इनकम मेथड से क्या मिलता है? NDP at FC। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या मिलता है? GDP at MP। और वैल्यू एडेड मेथड से क्या मिलता है? GVA at MP। So NDP at FC by income method, GDP at MP by expenditure method, and GVA at MP by value added method, and last but not the least, value added and domestic product is one and the same thing numerically. Same thing numerically. किसी को कोई डाउट? Divij, is that clear?
Yes, sir. तो बेटा मैं देखो मैंने बोला भैंस उड़, आपने तो भैंस भी उड़ा दी बेटा, उड़ा दी ना, Yes. तो बेटा पेपर में मत उड़ाना। Yes. 700। ओके, अब मेरे ख्याल से मेरा क्वेश्चन फिनिश। इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया तो मुझे उससे मतलब नहीं है। सो 2000 माइनस 200 1200, सॉरी 1800 प्लस 700 2500, 2500। ये कैसे हो गया? मेरा वैल्यू ऑफ इनपुट कितना था बेटा इसमें? 3000 करोड़। वैल्यू ऑफ इनपुट इज 3000 करोड़। मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है यार, कहाँ गड़बड़ हुआ? NV8FC, NV8FC plus depreciation. Thank you. Subsidy 200, opening stock, closing stock, total sales plus change in stock, GV at MP is equal to O minus V. हाँ ठीक है ना, मेरी गलती है बेटा। आप लोग मेरे को, मैं थोड़ा सा आज, आई एम सॉरी गाइस, आई एम नॉट इनटू माय सेंसेस। अगर मैं गलती करूं तो ये 2500 तो यहाँ लिखूंगा ना सारा, Yes, तो मेरे sir. पास फिर उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा बच्चों 5500 करोड़। माय बैड, उसको मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट के नीचे लिख रहा था। सो विद द हेल्प ऑफ दिस हमने अपना टोटल सेल्स 5000 कैलकुलेट कर लिया। सो आई रिपीट दिस थिंग, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपकी क्या चीज मिसिंग है, उस बेसिस पे आप कैलकुलेट करना। नाउ मुझे सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, फटाफट से एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ बात करना है। पॉइंट नंबर 1, fixed capital goods with a lifespan of 5 years will help you to get what? Angel Vohra, your turn. In question number 10, fixed capital with a lifespan of 5 years will, देखो बाकी सब तो आप कर लोगे, मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। My question is fixed capital goods with a capital span of 5 years or a lifespan of 5 years will give you what? I don't understand. Okay, Devij. Depreciation. ऑल राइट, तो एंजल प्लीज याद रखना बेटा, मैंने एक डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिखवाया था। ओरिजिनल कॉस्ट विच इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑन कैपिटल गुड्स, फॉर एग्जांपल मशीनरी, माइनस, अगर उस क्वेश्चन में उसकी सारा क्या दे रखी हो बेटा, scrap value of विच इज ऑल्सो कॉल्ड मेरा बेटा रेजिडुअल वैल्यू, scrap value which is also called residual value divided by life। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में 15 is the original cost, scrap value is 0, life is 5, so you will get depreciation। और जब तक एंजल आप depreciation नहीं निकालोगे आप शायद अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाओगे। Now my next question to Pia Mehra is, Pia Mehra, this taxes on production is what? Sir, it's indirect taxes. Thank you. Trisha Bajaj, Yes, sir. what is taxes on income? I don't get. Sara, sir direct tax. thank you. And you know, you use indirect tax ना कि direct tax, you use indirect tax ना कि direct tax। is that point clear? Is that point clear? Yes, लॉक कर दूं? त्रिशा, is that clear बेटा? Yes, sir. मुझे समझ नहीं आया था आपने like taxes on income for what, in the what sense आपने पूछा था?
All right, question number 2, just one simple question. Divij, Yes, sir. क्वेश्चन 2 कहता है कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय ए एंड वैल्यू एडेड बाय फॉर्म बी एंड लेट्स से क्वेश्चन सेज कैलकुलेट, जान के मैं इसी क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूं, कैलकुलेट नेशनल इनकम। ओके, जब आपको वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड फॉर्म बी निकालना है तो आप अपना फॉर्मूला कितनी बारी लिखोगे? 2 times. Done. For value added by firm A equals GVA at MP equals value of output minus value of Input. Similarly firm B का भी लिख लेते हैं, value added by firm B equals value of output minus value of input. Value of output is total sales plus Income. प्लस, बेटा ये आदत डाल लो, आप लोग लिखते नहीं हो इसलिए भूल जाते हो। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू टोटल सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, क्योंकि हम पेपर में फिर भूल जाते हैं बेटा। नाउ उसके बाद हम अभी आगे नहीं लिख रहे, क्योंकि अगर वर्ड डोमेस्टिक सेल्स दिया होता तो हमें एक्सपोर्ट का जरूरत है, और अगर खाली वर्ड सेल्स लिखा है तो हमें एक्सपोर्ट का जरूरत नहीं है। ना वन बाय वन, सेल्स बाय फर्म ए कितना है? 100। 100. सेल्स बाय फर्म ए 100, इसीलिए एक्सपोर्ट का जरूरत नहीं है। परचेज फ्रॉम बी बाय फर्म ए, तो ये फर्म ए का क्या बन गया? फर्म ए का क्या बन गया? Sales. नहीं बच्चों, ध्यान से पढ़ो, यही इंग्लिश है बेटा, जल्दी नहीं कर। Purchase. परचेज यानी फॉर्म ए का क्या बन गया? वैल्यू ऑफ इनपुट। Input. और ये फॉर्म बी के लिए अगर ए का परचेज था तो बी का क्या बन गया? अगर ए ने परचेज किया था तो बी ने, The sale. बट बी का तो सेल्स ऑलरेडी टोटल, The total sales is given 200. इसीलिए मुझे इंडिविजुअल सेल से मतलब तो नहीं है. आई रिपीट, मेरे पास सारा बुक में एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं मिल रहा, जहां पे मुझे इंडिविजुअल सेल्स को ऐड करके टोटल सेल्स निकालना पड़ता है। अगर मैं इंडिविजुअल सेल्स को ऐड करके निकालूंगा तो मैं एक्सपोर्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात याद रखना बच्चों, आपके 99% क्वेश्चंस में टोटल सेल्स दिया होता है, तो जो इंडिविजुअल इंटर फर्म सेल्स होती है या एक्सपोर्ट होता है हम उसे इग्नोर कर देते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर सारा, त्रिशा, एंजल, सलोनी? Yes, sir. ऑलराइट, फटाफट से आगे चलते हैं पुत्र। नाउ सेल्स बाय फर्म बी हमने कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए 20 एंड ओपनिंग 25, so 20 minus 25। yes एंजल? सर अगर हमें टोटल सेल्स दिया है बट हमें इंडिविजुअल सेल्स भी दिया है तो हम टोटल सेल्स ही लेंगे, मतलब फाइनल उसमें लिखने का। yes बेटा, क्योंकि सेल्स का मतलब टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स में सारी इंडिविजुअल सेल्स एडेड होती हैं। सिमिलरली क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी दिया था, मैंने लिख दिया। अब इस वैल्यू का क्या करूं सलोनी? सलोनी इस क्वेश्चन में इस वैल्यू का क्या करूं, फटाफट बताओ बेटा। इसको करेंगे हम include। बोलो सर अभी नहीं, पहले आप इंडिविजुअली निकाल लो फिर बात करेंगे, ठीक है? Yes, sir. Okay, so let's ignore this point for the time being. 100 minus 5 95, 95 minus 40 55, 200 minus 10 190, और फर्म ए से फर्म बी ने परचेज किया, फर्म ए से
फॉर्म बी ने परचेज किया तो फॉर्म बी का वो बन गया वैल्यू ऑफ इनपुट। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आंसर फिनिश, वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए और बी आ गया। बट मैंने इस क्वेश्चन में क्या ऐड कर दिया सारा, नेशनल इनकम। National income is abbreviated as NNP at FC, and income is always calculated at, I repeat bacha party, income is always calculated at factor cost, Factor and cost. product is always calculated at, Market price. Right. all right, now NNP at FC मुझे निकालना है, और वैल्यू एडेड मेथड से क्या आता है, GVA at MP। वैल्यू एडेड मेथड से क्या आता है, GVA at MP। ग्रॉस बढ़ा तो डेप को क्या कर दूं, माइनस। डोमेस्टिक, यहाँ पे VA का मतलब आज वो यूज कर रहे हैं बच्चों ताकि मैं वो कॉन्सेप्ट भी बता सकता कि कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए तो यू नो VA इज नथिंग बट DP। VA is nothing but DP, so V is acting as D is domestic, domestic छोटा तो क्या प्लस कर दो, N FIFA, और मार्केट प्राइस बढ़ा तो क्या माइनस कर दो, NIT। Is that point clear, Angel? Yes, sir. Okay, now one by one, GV at MP में 55 लिखूं, 130 लिखूं या दोनों लिखूं, दोनों, क्योंकि यहां पर तो आपने इंडिविजुअल फॉर्म्स का निकाला था, नेशनल इनकम तो पूरी कंट्री की निकाल रहे हो, तो जितनी भी फॉर्म्स का आपने वैल्यू एडेड निकाला उन सबको बोलो बेटा, उन सबको ऐड करके लिखना होगा। इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया, एन फीफा नहीं दिया, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है बाय बोथ द फॉर्म्स ₹30, और सब्सिडी भी नहीं दिया, -0। सो माय आंसर बिकम्स 155 crores आफ्टर सॉल्विंग। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डेवलप कि अगर इंडिविजुअल फॉर्म्स का दिया है, टोटल बनाने के लिए आपको उन दोनों फॉर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर सारा? Yes, sir. ऑलराइट, फटाफट से मैं पूछता जाता हूँ सलोनी। Yes, sir. जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, एक बड़ा क्वेश्चन भी अभी कर दूंगा, बट बिफोर आई डू 1 or 2 क्वेश्चंस आई विल डू मोर, एंड देन you guys are good to go and ask me the doubts in the evening. I'll share the timings for the evening. From the following data calculate NV at FC, फॉर्मूला आप लगा लोगे। अगर पेपर में वर्ड डोमेस्टिक सेल्स लिखा आता तो आप एक्सपोर्ट को क्या करोगे, यूज करोगे या इग्नोर करोगे? तो यूज करेंगे। क्योंकि हमें टोटल सेल्स चाहिए होता है, और अगर वर्ड डोमेस्टिक सेल्स लिखा है तो आपको उसमें एक्सपोर्ट ऐड करना है। थैंक यू। दिविज, Yes, sir. यहाँ पर वर्ड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय, देखो बच्चों मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो थ्रू देम क्विकली, एंड देन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड टेल यू द पैटर्न हाउ टू सॉल्व इट। पेपर में जिन चीजों का ध्यान रखना है मैं उसी को एम्फेसाइज करना चाह रहा हूं, बाय नॉट सॉल्विंग द एंटायर क्वेश्चन बट ट्राइंग टू गिव यू हाउ टू गो अबाउट इट। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस बाय एम्प्लॉइज, व्हाट यू गोना डू? इसको इग्नोर करेंगे। मतलब TBD Yes, sir. बोले तो तुझे भुला दिया, मुझे तुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है। नाउ कम्स त्रिशा बजाज। Yes, sir.
इस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो व्हाट यू विल डू, यू कैन लुक एट द क्वेश्चन एंड टेल मी क्विकली। अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो व्हाट यू गोना डू टू कैलकुलेट पीबीटी? We'll add dividends, we'll add undistributed profit and corporate tax. Because the three components of PBT are CT, UP and dividend, and when CT, UP and dividend are given, I have to add all of them. हाँ जी। सारा चावला, Yes, sir. आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो व्हाट यू नीड टू ऐड The change in stock. टू गेट GDCF, क्योंकि हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए होता है और उन्होंने दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। दिविज, यस सर। हमारे पास नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दिया है, तो बताओ क्या करोगे? ओके, इसका आप नाम बता दो मेरी भाषा में। मेरी भाषा में नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? सर इससे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे। थैंक यू। नेट डोमेस्टिक इनकम इन्वेस्टमेंट बोलो या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, बात सेम है। इसका मतलब आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? सर डेप्रिसिएशन टू गेट नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके सर वो जो टैक्स ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स था वो कॉर्पोरेट टैक्स ही है ना? हाँ बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। थ्रू दिस क्वेश्चन आई विल ट्राई डेवलपिंग फ्यू थिंग्स। मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा बच्चों, आई विल जस्ट ट्राई टू गिव यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के इसके बाद हिंट। मैं इसकी वैल्यूज सॉल्व नहीं करूंगा, हम फटाफट से बात कर लेंगे जो काम की बात है। नाउ इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? किसी के पास कैलकुलेटर है तो बच्चों हेल्प कर देना कैलकुलेशन में। कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग expenditure method and using income method. Everybody knows I never solve the question, I first write what I know. Question number 62, income method. हमें निकालना क्या है? NNP at FC। हमें निकालना क्या है? NNP at FC। इनकम मेथड से क्या आता है? हरी अब गाइस बोलो ना बेटा, मुझे लग रहा है मेरा पेपर है परसों। इनकम NDP at FC and mathematically NDP at FC is also equal to NVA at FC. Is that clear? Okay. Yes, sir. अब इसमें मैं सलोनी क्या करूं to get NNP at FC? देखो NPFC तो सेम है, the difference is of N and D. तो what should I do सलोनी? सलोनी Yes, NP sir. यस, क्योंकि डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस NP sir. NP। थैंक यू। नाउ NDP at FC equals COE, OS and MICE. OS में क्या आता है? रेस्ट इन पीस विद, बोल दो दिविज, मन में बोल रहे हो मुझे पता है, बोलो बेटा। मतलब राजेश बोल रहे हो? नहीं सर। अच्छा कोई नहीं, बोल लो, अब तो पेपर परसों है। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके चलते हैं आगे। एंड इसके बाद हम नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे
और सबसे पहले एग्जाम में, क्योंकि मुझे पता है आपके पास आधा घंटा होगा, पेपर पहले ही खत्म होगा आपका आधा घंटा। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड निकालना तो अभी भी क्या है, NNP at FC। नाउ अच्छा, एक बात याद रखना, सारा मुझे याद नहीं है, आप एक बार अपनी इस बुक में क्वेश्चन ढूंढ लेना बच्चों। उस क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि प्रूव दैट डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम और इनकम एक्रूइंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसा एक क्वेश्चन होगा जहां आपको प्रूव करके बताना होगा, मुझे मिला नहीं अभी, मैं ढूंढ रहा था। वो अगर आपको दिख जाए बच्चों, किसी भी बच्चे को प्रैक्टिस करते हुए, वो सेम क्वेश्चन की फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देना, सो दैट एवरीबडी शुड प्रैक्टिस। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। समझ गए ना सारा क्या कह रहा हूँ बेटा मैं? लाइक मैथमेटिकली प्रूव करना है या फिर सिर्फ वो मैथमेटिकली, रीजनिंग देनी है कि नहीं, फैक्टर मैथमेटिकली, सर्विसेज मैथमेटिकली न्यूमेरिकल है बच्चों वो। इन्हीं न्यूमेरिकल्स ओह के अंदर कहीं है, मुझे याद नहीं है बेटा कहाँ पे। अगर मुझे मिल गया तो मैं भी देख के बता दूंगा इफ आई गेट टाइम। ओके सर। मेरे को याद आ गया, नहीं तो मुझे कल याद दिला देना, कल मैं वेला ही वेला आऊंगा, मैं आराम से ढूंढ के बता दूंगा। ओके, नाउ अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है गाइस? व्हाट वी गेट बाय एक्सपेंडिचर मेथड? GDP GDP at MP। ग्रॉस बड़ा तो डेप्थ माइनस, डोमेस्टिक छोटा तो प्लस एन फीफा, एंड मार्केट प्राइस बड़ा तो NIT माइनस। गाइस प्लीज, आप लोगों ने मेरे पेपर में ये क्वेश्चन गलत किया था, याद से मेरे पेपर को देख लेना। जब थियोरेटिकली पूछा जाता है, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल करा रहा हूं आज। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? डिफाइन NFIA, एन फीफा एंड गिव इट्स कंपोनेंट। आप बच्चों ने मेरे पेपर में गलत किया था, दैट इज द रीजन आई टुक दिस क्वेश्चन। नाउ फर्स्ट, सबसे पहले हम अपनी फॉर्मूला की लिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। GDP at MP। मन में आप जब भी क्वेश्चन बेटा आज घर पे प्रैक्टिस करें, 5, 10, 15 जितना आपका मन करे, करते वक्त बार बार जरूर बोलें PFC has how many components? 2 components. Thank you. One is household and one is firm. And last but not the least, net export होता है तो add होता है, net import होता है तो, Minus. और net import माइनस में दिया है तो, Sir, 2 plus. थैंक यू। आई रिपीट, नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस, दिमाग ही नहीं लगाना। बट अगर नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया है तो वो माइनस होगा, बट अगर नेट इंपोर्ट माइनस वैल्यू दिया है तो वो Plus होगा. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ऑल राइट, अब हम आगे चलते हैं पुत्र फटाफट से। गवर्नमेंट, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, छोटी छोटी बात बची है जिसकी वजह से मैंने ये क्वेश्चन उठाया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5100 करोड़, मैंने यहां पे लिख दिया। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पे जब मैं लिखूंगा तो मुझे पता है मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक। बिकॉज यहाँ पे वर्ड दिया है फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और अगर ग्रॉस की जगह नेट दिया होता तो एक और चीज ऐड करनी पड़ती। व्हाट इज दैट? डेप्रीसिएशन। सो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 2800 माइनस का वर्ड लिख के छोड़ दिया। देन नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम, बोलो यार, abroad, net property and entrepreneurship from rest of the world, ये दोनों के दोनों किसके कंपोनेंट्स हैं? NFI and FIFA. थैंक यू। एक और कंपोनेंट होता है, मैं नहीं बताऊंगा, बुक खोल के ढूंढना। जब आप थियरी पढ़ोगे, एन फीफा के कितने कंपोनेंट है सारा चावला? So 3, यस, थर्ड कौन था याद है? net retained earnings. थैंक यू वेरी मच। सो नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, होता क्या है, हम पगला जाते हैं जब नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया होता है, हम उसको COE मान के इनकम मेथड में लिख देते हैं, अंग्रेजी आती ही नहीं हमें, फ्रॉम अब्रॉड वर्ड हम देखते ही नहीं। इज दैट क्लियर पुत्र? Yes, sir. So my N FIFA as of now is minus 325. Minus 325, I put it here. Next, one of the important point of this question, change in stock 2323. Change in stock
2323 यहाँ पे आ गया पुत्र, बिकॉज फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया था, इसीलिए चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ा. कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज अनदर नेम फॉर depreciation, which is 3023. Then private final consumption expenditure 42865. Then import of goods and services 3177. So minus 377. Then net indirect taxes 5168. Compensation of employees 17818. Then operating surplus 6890. इन सब का दे दिया. तो अब अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स दिए होंगे एंजल, मुझे उनको यूज करने की जरूरत नहीं है. थैंक यू. Then comes mixed income of self-employed 26041. Guys, mixed income of self-employed की definition पढ़ के जाना, पता नहीं मेरा उस पे दिल आया हुआ है. So mixed income of self-employed. I think I'm done. अब तो मुझे क्या करना है डेविड, इन सब वैल्यूज को ऐड. हाँ बेटा डेविड, Yes, sir. इन सब वैल्यूज को ऐड करना है. जस्ट टू सेव टाइम मैंने लिख दिया, वो x आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं. Yes, sir. सिमिलरली इन सब वैल्यूज को प्लस माइनस करना है, उसकी वैल्यू वहां यहाँ डालूंगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इज दैट क्लियर पुत्र? Yes, sir. ऑलराइट. अब मुझे फटाफट से एक दो चीजें और बता दो. टू बिगिन विद सलोनी, Yes, sir. while calculating income by any method, what you gonna do with this point, where you will use it? Sir, I don't know. Okay. त्रिशा बजाज, where you gonna use it? बच्चों मैं जिन जिन क्वेश्चन के जो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं बेटा, उनको प्लीज रिवाइज कर लेना. दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. त्रिशा बजाज, क्या करोगी आप इसका? फ्रॉम द रेस्ट, तो आई थिंक हम इसको एन फीफा में डालेंगे. ऑल राइट. आर्यन मलिक तो पता नहीं बुत बन के बैठा है, ना फोन करता है ना कुछ करता है, नालायक. पिया मेहरा, So we'll ignore it because it's a transfer income. थैंक यू बेटा. क्या लिख दूं इसके लिए? जैसे आपकी लाइफ में कुछ लोग यूजलेस होते हैं बट फिर भी उन्हें लाइफ में रखना पड़ता है, ऐसा होता है ना पिया? यस पिया. Yes, sir. तो वैसे ही इनको हमने अपने साथ रखा हुआ है क्वेश्चन में, बट एक्चुअली दे आर Useless. एंड होपलेस. गाइस वैल्यू एडिड का ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लेना, अगर पेपर बहुत सिंपल बनता है. दिविज, यू कैन गेट ए क्वेश्चन ऑन वैल्यू एडिड मेथड आल्सो, फुल फ्लेज जैसे बड़े वाले में बहुत रेयर आता है. कुछ नहीं करना बच्चों, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, आई रिपीट प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी को क्या करना है? तीनों को ऐड. बस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, फंडा विल रिमेन The same. थैंक यू पुत्र. क्लियर सारा? Yes, sir. मेरे को दो क्वेश्चन नहीं मिल रहे जो मैं ढूंढ रहा हूँ बेटा. हाँ एक तो ये मिल गया. गाइस दिस इज अ क्वेश्चन मैंने क्लास में किया हुआ है. क्वेश्चन टफ नहीं है, बस मुझे कुछ पॉइंट्स रिकॉल करने हैं इसके. माय फर्स्ट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज, माय फर्स्ट पॉइंट गोज टू
सलोनी, सलोनी इस क्वेश्चन में GDCF कैसे निकालोगी, फटाफट बता दो बेटा। जब देखो फॉर्मूलाज में सबने डालना है, सबको दिक्कत कहाँ पे आती है, छोटे छोटे पॉइंट जो भूल जाते हो। तो इस क्वेश्चन में सलोनी आप मुझे बताओ, आप ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड से करते वक्त कैसे निकालोगी? So we'll add all the investments, थैंक यू बेटा। gross So- and gross resident. अरे यार क्या बीमारी है इसको। So can I say 60 60, देखो इन्वेस्टमेंट 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 इन्वेस्टमेंट, जहां जहां वर्ड इन्वेस्टमेंट लिखा है इन सबको आप क्या कर दो, ऐड। इन सबको आप क्या कर दो, ऐड, टू गेट व्हाट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर सारा? Yes, sir. ओके। My next question for Divij. Divij, Yes. बेटा इनकम मेथड से सॉल्व करते वक्त इसको आप कहां पे यूज करोगे? गाइस मैं पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं, बट ये जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ना, ये आपके वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वेदर द नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इसका क्या करोगे, दिस इज टू बी टेक थियरी क्वेश्चन मैं इनडायरेक्टली कवर अप कर रहा हूं बेटा। तो बताओ बेटा इसका क्या करोगे, व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, आप इसको इनकम मेथड से करते वक्त क्या करोगे? तो इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट का ऑलरेडी दे रखा है वैल्यू। ओके इधर देखो बेटा, जल्दी मत करो, मेरा सवाल सारा चावला से। सारा Yes. Yes, sir. प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बच्चों से, मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना। यहाँ पे दिया हुआ है सारा एग्जाम में सेम क्वेश्चन पेपर में आ गया बच्चों, रेंट एंड प्रॉफिट एंड देन इंटरेस्ट ऑन नेट। प्यार से सुन लो मेरी बात, अकाउंट्स के पेपर में दिविज, इफ यू रिकॉल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, बट फिर कुछ बच्चे गलत करके आए। पेटेंट्स का पॉइंट आया ना पेपर में बेटा, यस सर। लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कराया था ना, यस सर। फिर भी हम गधे बच्चे गलत करके आए हैं, कुछ गुस्सा आ रहा है मेरे को, बट कोई बात नहीं। एनीवेज, रेंट एंड प्रॉफिट, रेंट एंड प्रॉफिट अगर दिया है सारा, तो बताओ क्या करोगी आप? इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर Sir. रही हो। सर अभी भी इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट को इग्नोर करेंगे बिकॉज इट इज टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस। थैंक यू। इज दिस क्लियर दिविज पुत्र? आपके लिए पॉइंट मैंने सारा से पूछा है चेंज करके। यस सर। अगर रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट लिखा है तो आप इग्नोर कराते, बट पेपर में मेरे जैसा टीचर ऐसे लिख दे आप तो उसे ऐड कराओगे बेटा। जबकि इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट is for consumption purpose, it's a transfer income, indirect way of saying सारा, it's a transfer income, और transfer income Yes, को हम कभी भी consideration में नहीं लेते। All right, next question goes to Angel. Angel, Yes, sir. आप इस क्वेश्चन को इनकम मेथड से कर रही हो और आपको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है। आपको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है। आई रिपीट, आपको कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है। बताओ क्या करोगी? आप एक क्वेश्चन देख लो, सभी बच्चे देख लो। इस क्वेश्चन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछने जा रहा हूं, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछने जा रहा हूं। अगर आपको सीओई कैलकुलेट करना है, व्हाट यू गोना डू? एक तो wages and salaries लेंगे, ओके, then employers' contribution to social security ओके, schemes, and so paid by the government तो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बाय गवर्नमेंट है तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो बताओ त्रिशा बजाज, इसे
क्यों नहीं लेंगे? वो कहती नहीं लेंगे, मैं तो कहता हूँ लेंगे। क्योंकि ये हमने ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरीज ले चुके हैं एक बार। थैंक यू वेरी मच। इस वेजेस एंड सैलरीज विच इज ए पार्ट ऑफ सीओई, उसमें पब्लिक सेक्टर का भी आ गया और गवर्नमेंट सेक्टर का भी आ गया। इसीलिए इस इंडिविजुअल कंपोनेंट से मतलब नहीं है, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू सलोनी। सलोनी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का क्या करोगी? और इंक्लूड इग्नोर करोगी, क्योंकि आज आपको क्या दे रखा है बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस। और जब ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड है, और प्रॉफिट का मतलब ही क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने शुरू से एक नोट बोला था, मेरे नोट्स देख लेना। जब वर्ड प्रॉफिट लिखा है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, उसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड। इंक्लूडेड होते हैं, तो इसीलिए मुझे उनसे मतलब नहीं है। इज दैट पॉइंट क्लियर पिया? Yes. All right, my next question to Pia Mehra is, in a question like this, आपको डेप्रिसिएशन निकालना है तो कैसे निकालोगे? क्योंकि क्वेश्चन में डेप तो दिया नहीं, और मैंने शुरू से बोला था डेप को जीरो तब एज्यूम करोगी जब आप उसे कैलकुलेट नहीं कर सकती। डेप को आप जीरो तब एज्यूम करोगी जब आप उसे जीरो एज्यूम नहीं कर सकती। So we'll use gross capital formation and net capital formation. Thank you very much, because we know gross capital formation that. equals net capital formation plus debt. देखो, एक्सपेंडिचर मेथड में तो आप ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यूज कर लोगी, बट इन दोनों के डिफरेंस से आप क्या निकाल लोगी? डेप्रीसिएशन। इज दैट पॉइंट क्लियर सारा? Yes, sir. दिवेज, Yes, sir. लेट अस एज्यूम क्वेश्चन 38 में यहां पर लिखा है कॉर्पोरेट टैक्स, यहां पर लिखा है कॉर्पोरेट टैक्स 100, और आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, तो आप रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट को ऐड करोगे। Yes, sir. हमारे इस क्वेश्चन में रेंट है 70, हमारे इस क्वेश्चन में रेंट है 70, इंटरेस्ट है 500, रॉयल्टी है 0। तो बताओ प्रॉफिट कितना लूं, 60 या 160? So 60. सारा 60 या 160? Sir, 60. पिया मेरा 60 या 160? So 60. गाइस प्लीज, ये देखो मैंने हाथ जोड़ दिए, आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बट मुझे बताना है। इधर देखो सारा, सारा प्लीज एक बार देखो। अगर यहाँ लिखा होता Yes. 10, अगर यहाँ लिखा होता मेरा बेटा 10, तो मैं कहता मैं कितना लिखूं? 60, क्योंकि 10 60 में ऑलरेडी, Included है. क्योंकि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है जब क्वेश्चन साइलेंट होता है? Profit before tax. और उसके क्या कंपोनेंट होते हैं? Corporate tax plus undistributed profits plus dividend. और ये तीनों उसके अंदर ऑलरेडी Included होते हैं. बट प्लीज बेटा, अगर यहाँ 100 लिखा आ गया, क्या 60 में 100 इंक्लूडेड है मेरा पुत्र? बोल मेरा बेटा, नहीं सर. क्या 60 में 100 ऑलरेडी No. इंक्लूडेड हो सकता है? तो तब No, मेरा sir. बच्चों क्या आंसर लिखेगा, 60 या 160? सर फिर 160, क्योंकि वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे उसको. Thank you very much, because 100 cannot be a part of 60, so this is the thing you need to keep in mind. Is that clear मेरा बेटा? Yes sir, clear. तो प्लीज ये छोटी सी बात ध्यान रखना। सारा, त्रिशा, एंजल, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके।
All right. Now, when we are talking about question number 36, my question goes to पता नहीं क्या कर रहा है यार ये आर्यन लड़का मेरा। आर्यन बेटा, उस आर्यन ने तो पापा का नाम खराब कर दिया, तू तो अच्छा कर दे बेटा। ओ आर्यन, सुनता ही नहीं है। ऑलराइट, माय क्वेश्चन गोज टू, घूम फिर के वहीं दो चार बच्चे। दिविज, दिविज, यस सर। हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, बताओ कैसे निकालोगे। आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 36। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो हाउ आई गोना कैलकुलेट इट, टेल मी। आप क्वेश्चन देख सकते हो, तो यू कैन टेक योर प्रॉफिट टाइम। आफ्टर टैक्स है हाँ जी, तो 4000, तो प्लस फिर सर कॉर्पोरेट टैक्स ऐड कर देंगे 4200। ओके। मेरा आपसे सवाल, अगर इस क्वेश्चन में सब्सिडी दिया होता 30 तो उसका क्या करते। सर प्रॉफिट की कैलकुलेशन में यस, सर फिर तो इग्नोर करते सब्सिडीज को। थैंक यू। क्योंकि वन ऑफ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, और हमारे इस फॉर्मूला में फालतू लोगों की जगह नहीं है। हमारे इस फॉर्मूला में सब्सिडी का कोई रोल नहीं है, बिकॉज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में सब्सिडी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इज दैट क्लियर सलोनी? Yes, sir. Okay. सारा, Yes, sir. जब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, जब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो उसको आप अपने फॉर्मूला में प्लस करोगे या माइनस? Sir, minus. और अगर उसके आगे ऑलरेडी माइनस का साइन है तो आप क्या करोगे? तो वो प्लस हो जाएगा। इज दैट क्लियर एंजल? हाँ जी सर। मेरे को एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा। All right guys, can we do question number 50? कौन मुझे सॉल्व कराएगा लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, देन वी विल वाइंड अप फॉर टुडे। हु वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर मी और रादर हेल्प मी आउट? कोई तो हाथ उठा दो बेटा। नो वन। सारा, कैन यू हेल्प मी आउट? Yes, sir. ऑलराइट, सो क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले आपको क्या निकालना है? जीडीपी एट एमपी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? जीडीपी एट एमपी। बताओ क्या करोगे? Yes, sir. Sir, GNPFC दे रखा है। रुक जाओ। शी सेड सर जीएनपीएफसी दे रखा है, नेशनल बड़ा, तो क्या करूं? Sir, minus and FIFA plus net indirect taxes. नाउ बच्चों, कैन आई हेल्प यू आउट? आप ये फॉर्मूला यूज सर नहीं, इसमें सर इसमें आप- वो नहीं होगा तो हम पहले वो निकालेंगे। आई नो, वो इसमें x ले लेंगे बेसिकली। we cannot, no, you just leave this formula मेरा बेटा, because if you want to So we use this don't have formula, FIRFA.
Yes, because we have to calculate factor income from abroad as one of the component, and that's the reason we cannot use this formula. Yes sir, तो NDPFC निकाल लेंगे. So GDP at MP, अब मैं कैसे निकालूं? Now when you look at the question, she says I will calculate NDPFC. Why she said that? Because if you look at the question, COE, rent, interest, the component related to which formula? Income method formula are given, and by income method Income what we get is called NDP at. NDPFC. By income method we get NDP at FC, and then net chota to plus depreciation, Depreciation. and market price bada to factor cost chota to plus Net NIT. indirect taxes. Yes. And what are the components of NDP at FC? So compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. Or I repeat, profit. If the word only profit is given, it means profit before tax. By profit we mean profit before tax जिसमें सभी component CT, UP and dividend are already included. Thank you. Now one by one. First component profit is given. How much? 500. तो इसको कहाँ पे लिख दूं? Operating surplus पे? Yes sir. लिख दिया. Then export. Export का क्या करूं बेटा? Export is used by which method? Sir export इसमें include नहीं होगा, मतलब इसमें Because expenditure method से use होता है, इसीलिए मुझे अभी नहीं चाहिए. COE 1500. COE 1500. Then comes gross national product at factor cost, GNP at FC. यहाँ लिख के छोड़ दूं बेटा? Yes sir. Okay, GNP at FC. Then net current transfer from rest of the world. इसका क्या करूं? Sir करेंगे. Ignore करेंगे because it's a transfer income. Yes sir. Rent and interest is a part of OS. Yes, so we'll add it. 300 plus 400. Factor income to abroad. इसको अभी जरा पेंडिंग रखते हैं बच्चों, बाद में यूज कर लेंगे because I never use it individually. Net indirect taxes 250. Net indirect taxes 250 and मैंने N FIFA को अभी X मान दिया. Then net domestic capital formation, gross fixed capital formation. इनका क्या करूं पुत्र? सर GFCF में चेंज इन स्टॉक ऐड करके उसमें NDCF माइनस कर देंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा. अच्छा, मेरे पास इतना दिमाग ही नहीं, पता नहीं क्या बोल रही है लड़की. आराम आराम से बात करते हैं. सर ये तीनों तो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में यूज होते हैं, इसमें कहीं पे भी उसका यूज नहीं है. मैं कहा बिल्कुल ठीक बात बोली. अब देखो हुआ क्या, यही मैं एक चीज यूज करना चाह रहा था बड़े क्वेश्चन के लिए. मेरे पास इस क्वेश्चन में माइस नहीं दिया. दिविज हम माइस को तो 0 एज्यूम कर सकते हैं, बट डेप्रिसिएशन को हम कभी भी डायरेक्टली 0 एज्यूम नहीं करेंगे. और मुझे पता है डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के डिफरेंस से. यस सर. तो अगर मुझे, क्या इस क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है कितना? 650. मुझे किसी तरीके क्या मिल जाए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. मुझे किसी भी तरीके से क्या मिल जाए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. तो मेरा काम चल जाएगा, मेरा काम चल जाएगा. और अगर मैं आपको याद दिलाऊं थोड़ी देर पहले की बात, 2 घंटे पहले की बात, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज gross domestic fixed capital formation plus change in stock. Gross domestic fixed capital formation is given as 700 and change in stock is given as 50. Now we got our depreciation as 100. So answer is 3050. Now when you solve this equation, your x comes as 0. Your x comes as 0
which is n FIFA is 0, which is FIRFA called factor income received from abroad minus factor income paid to abroad. And in this question, factor income to abroad is given to me as 120. So my factor income received from abroad will become 120. 120. बट होता क्या है सारा, एक छोटी सी गलती बताता हूँ बोर्ड एग्जाम की। टीचर क्या करता है पुत्र, टीचर क्या करता है पेपर बनाते वक्त, उसने यहाँ पे क्या लगा दिया मेरा बेटा, माइनस। तो आप जब इस फॉर्मूला में, मैं दोबारा लिख के बता देता हूं, आपने लिखा था एन फीफा विच केम एज 0, देन यू रोट फिरफा, क्योंकि मैं हमेशा अलग से ही सॉल्व करता हूं, फिरफा माइनस फिफ्ता, फिरफा इज y, लेट्स से एज्यूम इट टू बी y, फिफ्ता आप यहां पे जल्दी जल्दी में क्या लिख जाते हो, माइनस 120 की जगह 120। आप कहते हो माइनस का साइन तो लगा हुआ है, बेटा ये माइनस का साइन फॉर्मूला की वजह से है, और उसने मुझे फिफ्ता की वैल्यू क्या दी, माइनस 120। जल्दी से सुन लेना, मेरे को पता है ये क्वेश्चन गलत है, टीचर बदतमीजों वाला एक क्वेश्चन बना चुका है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरा बेटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 120, और आपका y क्या बन जाएगा, माइनस 120। अब जो स्मार्ट टीचर होते हैं वो क्या करते हैं पुत्र, सुनना जरा, बस 1 मिनट और लूंगा, देन यू आर गुड टू गो फ्रॉम माय साइड। वो क्या करते हैं, जब आपको सॉल्व करवाएंगे आपके फिरफा की वैल्यू आ जाएगी पुत्र, लेट से एज्यूमिंग आपका एन फीफा की वैल्यू आ गई 400, तो बताओ अब आपका y कितना आएगा, 280। और अगर आपने Yes, sir. माइनस का साइन नहीं लगाया होता, अगर आपने माइनस का साइन लगाना भूल जाओगे जल्दी जल्दी में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा पुत्र, सर 520। तो आपको 0 काटा मिल जाएगा बेटा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने मेजर पॉइंट्स आपके साथ रिवाइज किए व्हाइल डूइंग दीज क्वेश्चंस, आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, और जो भी डाउट हो मैं एक बार दोपहर को अपडेट कर दूंगा कि मैं शाम को कब आपके इस चैप्टर्स न्यूमेरिकल से रिलेटेड डाउट्स ले सकता हूं, वो मैं आपको बता दूंगा, एंड आई विल कीप वन क्लास अकॉर्डिंगली इन द इवनिंग, मे बी लेट इवनिंग अराउंड 9 और 10 और 8, दैट आई विल कीप यू पोस्टेड। अगर बहुत कम डाउट्स होंगे तो फिर कल सुबह ही ले लूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग रिवाइज कर लें, किसी को कोई भी डाउट हो मुझे कॉल कर लेना, इन केस इफ आई एम नॉट एबल टू टेक अ कॉल आई विल कॉल बैक यू, आई विल रिवर्ट यू बैक। बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट। सर